morning only. Yeah. My most of my exams are in the morning. Okay. Okay. मैम आपने वो फिजिक्स का एडमिन का दिया था ना, I printed it out from 2000 pages, 3 बड़े स्पाइरल काउंट कर 3000 कब पढ़ना है वो प्लान करो अभी. चलो. So this topic is plant growth and development. The topic number, last topic from 11th NCERT, and the topic is there for 12th. So this topic is plant growth, topic number 15, page number 239. It is sopa, very sopa. Chalo, and this topic is from your 12th standard. कौन सा टॉपिक है 12th में? बोलो चलो फटाफट. This is your 12th HSC, and the 12th HSC topic is plant growth and mineral nutrition में ये आ जाता है. ओके. प्लांट वाटर रिलेशन देखो अभी 12th का हमने क्या क्या किया. डू यू हैव 12th HSC गार्गी? चलो फिर लिख लो किधर तो. We have done, see, we have done topic number 9. We have done topic number 8. We have done topic number 6, and the half part now is from topic number 7. Yes. So 6, 7, 8, 9. Write it down. Thank you so very much. Thank you. 9. Chalo, okay. So 6, 7, 8, 9. Write it down, no, Gargi. We have done topic number 6, 7, 8, 9 from your 12th HSC, and this is the last टॉपिक फ्रॉम 11th NCERT. 12th में मिनरल न्यूट्रिशन के साथ ही प्लांट ग्रोथ दिया है. ओके. सो प्लांट ग्रोथ, सो हाउ विल यू डिफाइन ग्रोथ? चलो तुमने ये प्रिंट करना इस कंपल्सरी. मेरे पास जो नहीं रहेंगे वो मैं दूसरे किसी इसके अच्छे नोट्स दे दूंगी. ठीक है. चलो. सो प्लांट ग्रोथ, ग्रोथ इज डिफाइंड एज व्हाट? राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ. फर्स्ट ऑफ ऑल, write down the growth. Growth can be defined as an irreversible increase in size. Growth can be defined as an irreversible increase in size of an organ or its part or even individual cell. Okay. हम लोगों ने देखा है कि हाउ द प्लांट ग्रोथ. सो ग्रोथ इज फ्रॉम लाइक रूट, शूट. सो रूट इज अराइजिंग फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एम्ब्रियो? हाँ, रेडिकल. एंड शूट, ल्यूम्यूल. So further they develop into plantlet, they develop into the big plants, then they give flowers, then they give fruits and all these things. Okay. So plant are descendant of xylem. All cells of a plant, दिख रहा है क्या तुमको NCERT में? All cells of plant are descendant of zygote. बीच में किधर तो लाइन है टॉपिक के शुरू में. Plants are descendant of zygote. So तो grow हो जाते हैं plants. So growth is accompanied by metabolic processes. So growth में there is both anabolism and catabolism, and that leads to growth at the expense of energy. Okay. So how can you say कि leaf बन गए, shoot का length हो गया, leaf का size बढ़ गया. So all these are denoting the growth. Can you tell me, like, supposing I am putting a piece of wooden block in water. So we say कि growth is increasing size. So I am putting the wooden block in water. It will also तो कौन सा है फिर वो? The wooden block is increasing in the size or it is swelling up. That process is now called as, you know that process? No. Absorption होता है तो क्या होता है? Absorption थोड़ी ना हो रहा है, adsorption हो रहा है, तो वो swell हो रहा है. So that is what attraction
Cellulosic adsorption, but that process is called as adsorption is a part of that process. That process is मैंने बोला कि मैंने एक वुडन ब्लॉक को पानी में डाल दिया, ये वुडन ब्लॉक थोड़ा स्वेल हो गया, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? इज इट अ ग्रोथ? नो, इट इज नॉट ग्रोथ, बिकॉज growth should, biological growth should accompany by catabolism and anabolism. तो फिर ये क्या हुआ? इंट्रिंसिक मतलब अपना ग्रोथ. Why this swell? Because of which process this wooden block has swollen? Yes. Adsorption हुआ, लेकिन प्रोसेस कौन सा हुआ? Adsorption is a part of that process, so that term. Yes. ये मैंने क्वेश्चन डाला तो exactly. The first step in the process of plant growth is what? The first step, चलो as per NCERT लिखो. The first step, so development is the sum of two process. वो zygote के नीचे वाला लाइन देखो, तो वो growth and differentiation. तो growth तुमको समझ रहा है. Development of a mature plant from a zygote follow precise and highly ordered succession of events. During this process, a complex body organization is formed that produces root, leaves, branches, flower, fruit, and diseases. The first step in the process of plant growth is seed germination. Okay, seed will germinate in the favorable conditions. So, what are the favorable conditions? How it is going to take place, and all these things. Yes, all these things will support the So that process is an imbibition, and imbibition generally is a reversible increase. मतलब बारिश में डोर स्वेल होते हैं, बारिश चले जाने के बाद वो नॉर्मल भी हो जाए. Okay, so that is a reversible. But growth is irreversible. Obviously, अभी मैं छोटा मतलब चाइल्डहुड में जाना चाहती हूँ. Not possible. Yeah, so not possible. चलो, so growth can be of two types. चलो, tell me the characteristic of growth. Characteristic बोलो. अभी मैंने क्वेश्चन दिया तुमको. Write down the characteristic of growth. हाँ. हाँ. So plant, if I say give reason, plant growth is localized. खुर्ची घेऊन बसायचंय का? Localized मतलब क्या? It is restricted to certain location. कैसे? It will grow at the place of apical meristem. It will grow at the place of intercalary meristem and lateral meristem. Write it down. Give reason. Plant growth is localized. Because it is restricted to certain points. कौन सा? Apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. अपना localized है क्या? नहीं, सभी पार्ट इंक्रीज होते हैं. ग्रो होते हैं. हाँ, as you grow, thighs, muscles, cells get. हाँ. And then the overall plant, we can observe the plant is growing. I say give reason plant growth is open.
सो नहीं आएगा मुझे पता है, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट them. तो प्लांट ग्रोथ इज ओपन बिकॉज न्यू सेल्स आर एडेड. अपने जैसा नहीं है कि ओल्ड सेल्स आर गोइंग एंड देन द न्यू सेल्स आर कमिंग. न्यू सेल्स कीप ऑन एडिंग ऑन द प्लांट बॉडी. सो तभी तो कॉर्क बनता है एंड बार्क बनते हैं, है कि नहीं? सो प्लांट ग्रोथ इज ओपन. ये नहीं बोल रही हूँ मैं, ये इसको मैंने अभी तक टच नहीं किया. हाँ, जिधर मेरिस्टेम है तो किधर किधर है? अपाइकल है, इंटरकैल है. ओके, नाउ द प्लांट ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप. प्राइमरी ग्रोथ कहाँ पे होता है? देखो अभी नाउ एवरीथिंग इज थेरोटिकल. अभी जब तक मैं समझाती नहीं दिया होगा किधर, तो नहीं तो ये समझना जरूरी है. तो ग्रोथ का जो कैरेक्टरिस्टिक बोला वो इधर है. प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट. क्यों? एनसीईआरटी पढ़ो. प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट. Yeah, they grow unlimitedly. यहाँ पे दिया देखो, प्लांट ग्रोथ इज ओपन. वही उसी पैराग्राफ में दिया है, प्लांट ग्रोथ इज ओपन. ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ. ओपन ओपन. The product, however, should be using the capacity to divide the cells make up the plant body. This form of growth that in the cells are added to the plant body. समझ लो. आगे क्वेश्चन पूछा, आंसर करो. चलो. What will happen to the when the plant won't grow? It will die. हाँ. Does it ever happen? No. Happen no? हाँ, but does it ever happen पूछा? Yes, it can happen. Plant die क्यों? Plant, we are saying कि plant growth is unlimited. It keep on growing. तो मर थोड़ी ना जाते. तो if you do not provide proper nutrition, proper environmental factor, तो मर जाएगा ना. अभी मैंने वो कुंडी में झाड़ लगाया था, वो मर गया. देखो जाके. क्यों? क्योंकि पानी नहीं डाला बीच में. हाँ, तो मर गया. तो ये ग्रो नहीं होगा. कैसे होगा? हाँ, मतलब अगर मर गया तो कैसे ग्रो होगा? अगर एक तो ग्रो नहीं होगा, पर ऐसा नहीं मर जाए. हाँ, तो स्लोली में हैपन. हाँ, चल. तो प्राइमरी ग्रोथ आगे के पैराग्राफ में दिया. प्राइमरी ग्रोथ कहाँ पे होता है? देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट. नीट के पॉइंट्स एटलीस्ट कीप राइटिंग. क्या लिखा? ओपन ग्रोथ. फिर मैंने क्या पूछा था? लोकलाइज्ड ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, इनहिबिशन. ये एटलीस्ट कीप ऑन राइटिंग दिस पॉइंट्स. तो इसको तुम अपना अपने तरीके से इलाबोरेट करो. प्राइमरी ग्रोथ, रूट अपाइकल एंड शूट अपाइकल. Okay, they basically help for the elongation. Secondary growth can be observed in dicot plant and gymnosperm. किसमें होता है? इस पे क्वेश्चन आते हैं. Secondary growth can be observed in dicot and gymnosperm. ओके. क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ. लैटरल मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ. तो यहाँ पे देखो, ये सेम डायग्राम है. शूट अपाइकल मेरिस्टेम, तो शूट का इलोंगेट हो गया. वैस्कुलर कैम्बियम बना तो सेकेंडरी. सेकेंडरी मतलब उसका गर्थ बढ़ेगा, है ना. वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, तो रूट अपाइकल एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम.
and the cambium, which gives a secondary growth. आ रहा है समझ में? चलो आगे जाऊं. Growth is measurable. Yes, चलो. So at cellular level, growth can be measured by measuring the increase in amount of protoplasm, but it is very difficult to measure directly. So अपने को indirectly उसको measure करना पड़ेगा. ठीक है ना? तो कैसे करेंगे? Increase in fresh weight, increase in dry weight, increase in surface area. Okay? Surface area, growth in dorsiventral. Dorsiventral किस में होता है? डाइकॉट्स. मतलब क्या? डिफरेंट. Increase in number of cell. One single maize root apical meristem can give इतने new cells per hour. Okay. Increase in size. Watermelon may increase 3.5 lakh times. My God. है ना? Increase in length, growth of the pollen tube, and this becomes an important question क्योंकि हम आगे करने वाले हैं sexual reproduction in angiosperm or in flowering plant. So growth can be measured by oxanometer. Pollen grade कैसे करेंगे? तो इट इज ऑक्सानोमीटर, क्योंकि ये आगे आएगा, इधर नहीं दिया होगा तो आगे आएगा. ऑक्सानोमीटर कल मैंने इसका भी पीडीएफ अपलोड किया क्या टेलीग्राम पे? मैं ही सिर्फ काम करती हूँ 4 बच्चों के लिए 4 घंटा रोज. ये भी डाला है और आपने ये भी डाला है और भी डाला है. हाँ 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 हाँ. नहीं रे, मुझे तो दिख रहे ना वो. हाउ कैन दिस हैपन? मेरा मोबाइल यही कब हो जाएगा? हाँ पहले मेरे साथ भी हुआ था. नहीं, मैं रिमूव करूंगी तो ऐड नहीं कर सकती मैं. फिर वो झंझट है. फिर मुझे ना किधर तो यू कैन ज्वाइन. हाँ, यू डू वन थिंग. अगर तुम्हारा नहीं होता है तो मम्मा के इस पे करो. ये कितना अच्छे से मुझे दिख रहा है. गार्गी पटवर्धन ज्वाइंड ऑन 17 Jan. कर तो डाउनलोड अभी. लिंक मैंने सेंड किया. हाँ ठीक है ना. फिर इस पे एक बार आ जाओ, फिर लैपटॉप पे दिखेगा. इस पे होना चाहिए ना पहले. ईशा, प्रीशा, गौतम, गार्गी सब दिख रहे हैं मुझे. 4 को ही डाला है और 2-3 मेरे जो बच्चों ने मुझे इधर उधर के रिक्वेस्ट किया. हाँ मैंने निकाल दिया. जो नई 12th में कंटिन्यू हुए उनको मैंने निकाल दिया. हाँ हाँ, तो मैंने काफी कोशिश की थी. फिर आई एम नॉट दैट टेक्नो savvy. मतलब इतने टेक्निकल टर्म्स मुझे नहीं समझते वो. चलो बाद में करो, एंड में करो. चलो द फेजेस ऑफ ग्रोथ. चलो ये हो गया. तो कैसे पॉलन ट्यूब का अगर ग्रोथ होता है तो दैट इज इंक्रीज इन लेंथ. वो ऑक्सानोमीटर से तुम नोटिस करोगे. ठीक है. हाँ ऑक्सानोमीटर. देखो यहाँ पे Yes, I'm so happy this is the last topic. आज वेडनेसडे है ना? You can sit. We can start with genetics.
नहीं नहीं, ऐसे बीच में से जेनेटिक्स नहीं। चलो चलो, द फेजेस ऑफ ग्रोथ, द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। कौन सा? मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। यस, मैंने अनाट में सिखाया। मेरिस्टेमेटिक, रूट अपेक्स, शूट अपेक्स, मेरिस्टेमेटिक फेजेस ऑफ ग्रोथ। ओके, cells are small in size, abundant plasmodesmatal connection. ठीक है। What was after plasmo connection? Cells are small in size. Intercellular spaces are absent. कौन से इसमें मेरिस्टेमेटिक? नहीं तो जनरली अपने को पता होता है कि इंटरसेल्युलर स्पेसेस इधर वो पैरेन्काइमा क्लोरेन्काइमा वो करते हैं हम लोग, लेकिन इधर भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस बेबी सेल्स में नहीं होते हैं। सेल्स आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म एंड कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई। मतलब क्या? न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज, कॉन्स्पिक्यूअस, एकदम डार्क दिखता है। यस, एंड इसमें मेरिस्टेमेटिक में सेल, ये हमने तब भी किया था इन सेल वॉल इन डिटेल इन सेल्स, देयर सेल वॉल्स आर प्राइमरी इन नेचर। आगे आएगा नहीं, चलो इधर ही। इफ यू रिमेम्बर, यस, देयर सेल वॉल, यस, दे आर वेरी थिन, they are primary in nature and cellulosic with abundant plasmodesmata. Yeah. Okay, chalo. Then the next phase is elongation. The cells proximal to meristematic zone represent the phase of elongation. Cells in this region are characterized by increased vacuolation, cell enlargement, new cell wall deposition. ओके, इसमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल है, इसमें आ जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल, इलोंगेशन एंड द मैच्योरेशन. द सेल्स मोर प्रॉक्सिमल टू फेज ऑफ इलोंगेशन, they attain their maximum size and wall thickening and protoplasm modification. उसमें प्राइमरी में न्यूक्लियाई होता है प्रोमिनेंट, इलोंगेशन हो जाएगा तो क्या प्रोमिनेंट आएगा? क्या आएगा प्रोमिनेंट? इलोंगेट, मैच्योरेशन में प्रोमिनेंटली न्यूक्लियस रहेगा कि और कुछ रहेगा? वॉल थिकनिंग तो होता है, में लार्ज क्या रहेगा? न्यूक्लियस vacuole, and nucleus now will become what centric? Eccentric towards the periphery. हाँ, न्यूक्लियस पेरिफेरी में चला जाएगा, वो eccentric बन जाएगा. Yes. So already you have studied in topic 6. That is a, ये हो गया तुम्हारा डायग्राम. इधर phases of detection of zones of elongation by the parallel line technique. Zone ABCD immediately behind the apex have elongated most. है ना, ये elongate हो गए, पहले के थे, फिर ये सेल इतने elongate हो गए यहाँ पे. So this diagram important again, NCERT based diagram. Now growth rate. Yes, क्यों नहीं? It is for you. इकडचा थ्रेड घेतो. हाँ, इसके फोन पे इसके 1/8. हाँ, ठीक है, मैं देखती हूँ. चलो, growth rate can be measured in two forms, arithmetic and geometric. The increase in growth per unit time is termed as growth rate. का definition important. Increased in growth per unit time is termed as a growth rate and can be expressed arithmetic and geometric. Okay, चलो arithmetic पढ़ो और क्या समझा मुझे बोलो.
डिवाइड होने बताया और जो दूसरा वन था ना वो मैच्योर हो जाता है। हाँ, सो देखो यहाँ पे ये 2 सेल है, इसमें से एक डिवीजन करेगा, एक सेल मैच्योर हो जाएगा। आगे देखो ये सेल डिवीजन करेगा, ये मैच्योरिटी को जाएगा, ये सेल डिवीजन करेगा, ये मैच्योरिटी को, ये पहले वाले मैच्योरिटी को गए हुए हैं, ये सेल डिवाइड करेगा, ये मैच्योरिटी को जाएगा। सो इन अरिथमेटिक ओनली वन डॉटर सेल अमॉन्ग द 2 फर्दर डिवाइड्स व्हाइल अदर डिफरेंशिएट एंड बिकम मैच्योर, other differentiate and become mature, so they stop dividing. Only one becomes has a potential to divide. Only one has a potential to divide. Okay, and other will go for maturity. ये जो है maturity को जाएगा. So इसके example root and shoot elongation at constant rate is arithmetic growth. तो वहां पे लिख के रखो arithmetic example, मैं भी लिखती हूँ root and shoot elongation. Root and shoot elongation is arithmetic. Okay. And the formula आता है क्वेश्चन. And the formula. एक लड़की थी ऑल टाइम फेवरेट मेरी स्टूडेंट मृण्मयी, टिल नाउ शी इज माय ऑल टाइम फेवरेट. सो यहाँ पे भी अच्छी थी और जेई में भी अच्छी थी एंड शी वाज स्टडीइंग जेई. तो उसने इतना फंटास्टिक इसका मैथमेटिकल लॉजिकली एक्सप्लेन करके बोला था सभी बच्चों को. व्हाई दिस इज LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT. एक्चुअली रिकॉर्ड करना चाहिए था उस बार, नहीं किया. उसकी एक कहानी वो ये रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद बोलूंगी, याद दिलाओगे तो बोलूंगी. हाँ नहीं, उसने उसको नीट में भी हाईएस्ट थे, मेरे लिए उसने नीट दिया. मैंने बोला तू नीट दे, नहीं तो मुझे रिजल्ट ही नहीं कुछ रहेगा, मैं डिप्रेशन में जाऊंगी. सो यू गिव नीट फॉर मी एंड शी गेव इट. शी वेंट टू केमिकल इंजीनियरिंग. उसका डिसाइडेड था केमिकल इंजीनियरिंग करना. ओके चलो. सो LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT. LT क्या है, L0 क्या है, R क्या है, T क्या है. सो लेंथ एट द टाइम T, लेंथ एट द टाइम 0. तुमको अगर ये देते हैं दे विल आस्क यू दिस इज अरिथमेटिक ग्रोथ, फाइंड आउट द ग्रोथ रेट. सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस R mathematically, so you will be able to do. And the arithmetic growth rate shows a linear growth curve. This is also important. ये फॉर्मूला बेस पे कुछ आया तो छोड़ देने का, लेकिन ये आता है तो तुम 30 सेकेंड इनिशियल का सॉल्व कर सकते हो. इसके लिए तुमको सपोजिंग 1.5 मिनट लग रहा है. आपको पता है ये ऐसे क्वेश्चन बहुत कुछ वो आपने कराया था तो सिग्मॉइड मैंने कितने बार वही क्वेश्चन आया है. हाँ तो ये इसके लिए 1.5 मिनट मतलब 16 मार्क की बलि चढ़ा रहे हो तो शुरू में छोड़ देने का, बाद में अटेम्प्ट करें टाइम मिला तो, नहीं तो फिर 1.5 मिनट 30 सेकेंड में हुआ तो करने का, नहीं तो छोड़ देने का. तो इट इज एवरीथिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट. नहीं उनको सबको थोड़ी ना 360 देना है, नहीं सबको नहीं देना है, ऐसा नहीं होता है. चलो ज्योमेट्रिक ग्रोथ. In this growth, both the progeny cell following mitotic division retain the ability to divide and continue to do so. सबको ही कैपेसिटी है डेवलपमेंट की. इसमें एक जो मैचुरेशन को जा रहा है इधर नहीं जा रहा है. So all cells are capable of division. फटाफट डिवाइड ही करते रहते हैं. So geometric progression and इसका फॉर्मूला. ये ज्योमेट्री क्या है? Yes, geometric है. All cells are dividing. यहाँ पे only one cell and other go for maturity. Okay, so early embryonic development, division in zygote and division in unicellular organism is always geometric. तो सी डायग्राम दिया है उन्होंने, देखो कहाँ पे सी डायग्राम. यस, zygote डिवाइड देन ज्योमेट्रिक एंड देन वो बन जाता है अरिथमेटिक जब उसको मैच्योरिटी को जाना. लेकिन शुरू में जो ग्रोथ होता है फटाफट सब सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, दैट इज अ ज्योमेट्रिक. सो अर्ली एम्ब्रियोनिक
डेवलपमेंट। डायग्राम पे से समझ में आएगा विच वन इज जाइगोट डिवाइडेड को ए कर देंगे, ज्योमेट्रिक को बी कर देंगे, अरिथमेटिक को सी कर देंगे एंड दे विल आस्क यू टू आइडेंटिफाई, है ना। इधर शायद डाला है क्या मैंने, नहीं डाला है। कौन सा? इसमें देखो फिगर 15.4 फर्स्ट अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक कैसे होता है प्लांट में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सो वी आर स्टडीइंग डेवलपमेंट। So zygote is dividing, geometric phase, all cells are dividing, and then arithmetic phase. Okay. इसका फॉर्मूला W1 is equal to W0 e raised to RT. लर्न करना पड़ेगा हम। So इसका ग्राफ इज अ कौन सा ग्राफ, सिग्मॉइड। So now write down differences between arithmetic and geometry. Chalo. Yes. These are the phases of growth also. Lag phase, log phase, stationary phase. करो चलो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक में डिफरेंशिएशन करो, चलो फटाफट। पहले तो क्या, अरिथमेटिक वन सेल डिवाइड, अदर सेल गो फॉर मैच्योरिटी, हियर ऑल सेल्स आर डिवाइडेड। फॉर्मूला लिखो दोनों का, फिर इसका कैसा है ग्राफ, लीनियर कर्व, नोटबुक में लिखो लीनियर कर्व, इधर सिग्मॉइड कर्व। एग्जाम्पल में यहाँ पे रूट एंड शूट इलॉन्गेशन है ना, एंड यहाँ पे इनिशियल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन जाइगोट एंड डिवीजन इन यूनिसेल्युलर, यहाँ पे रूट एंड शूट इलॉन्गेशन। एग्जाम्पल नहीं दिए होंगे तो मैं बता रही हूँ, लिखो। ऐसा नहीं है, इधर भी तो मैं भी तो लिख रही हूँ। चलो अभी वहां पे क्वेश्चन पूछा है, कैन यू थिंक ऑफ मोर सिमिलर एग्जाम्पल, फाइंड आउट। ओके, what kind of curve can you expect in a tree showing seasonal activities? करो ना, what kind of curve can you expect in a tree showing seasonal activity? क्यों? तो प्रोकैरियोट में थोड़ी सीजनल होता है, ये होता है। ज्योमेट्रिक होगा कि अरिथमेटिक होगा वो पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ सीजनल है, क्योंकि सीजनल है, सीजन में ऑल थिंग्स आर फेवरेबल, तो सीजनल में फटाफट ग्रो करेगा। हाँ ज्योमेट्रिक करेगा क्योंकि सीजन है, उसका फेवरेट सीजन है ना। तो सिग्मॉइड कर्व लिखो, सिग्मॉइड को एस कर्व भी बोलते हैं, सिग्मॉइड और इट इज एस आल्सो। सो इट हैज अ फेज, लैग फेज, लॉक फेज एंड स्टेशनरी। अभी लैग क्यों आता है, व्हाई लैग का क्यों, मतलब क्यों, व्हाई, उसको एडजस्टमेंट के लिए टाइम लगता है, एंड देन एक बार एडजस्ट हो गया तो फटाफट ग्रो करेगा।
फॉर एवरीवन होगा तो सेल मरने लगेंगे और फिर कांस्टेंट जैसे रहेंगे। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व भी ऐसा ही होता है, लैग लॉग स्टेशनरी एंड देन देयर इज अ डेथ। ओके, चलो ग्रोथ रेट, quantitative comparison between the growth of living system can be of two ways. फास्ट हो रहा है क्या? फास्ट हो रहा है? हाँ तो बोलो ना, फिर क्या नहीं समझा बोलो। तो फास्ट क्यों हो रहा है? गार्गी बोल, फास्ट का होता है? हाँ करो ना, मैं आई एम वेटिंग। ये समझा ना, लेकिन मैंने बोला वो हाँ चलो ठीक है, बिटल पे मत जाओ। ग्रोथ रेट, so quantitative comparison between the growth of living system, absolute growth rate and relative। चलो पढ़ो और मुझे समझाओ। जब तक होगा तब तक करते रहेंगे। चलो पढ़ो और मुझे समझाओ क्या है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। चल गार्गी एब्सोल्यूट पूरा कंप्लीट पढ़ो और मुझे समझो। हाँ भाई, एब्सोल्यूट पूरा ग्रोथ का भी हुआ है, वो पूरा होता है और रिलेटिव खाली पढ़ो और समझो। पढ़, हाँ मुझे पूछ मत, पढ़। Absolute growth rate is the measurement and the comparison of the total growth rate. मतलब total growth कितना हुआ है उसका, and relative growth rate is based on specific parameters. Same parameters. तो ये फॉर्मूला रिलेटिव ग्रोथ रेट के लिए, ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय इनिशियल पैरामीटर्स। इनिशियल कितना था 50, ग्रोथ कितना हुआ, ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट। तो मैंने दिया ना यहाँ पे, इसीलिए यूनिट टीचर। और ये फॉर्मूला निकाल के रिलेटिव ग्रोथ रेट ए का निकालो, रिलेटिव ग्रोथ रेट बी का निकालो। ए का निकालो ना यूजिंग दिस फॉर्मूला, कितना आ रहा है एक्चुअल में। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो चलो करो। ज्यादा एक का
ज्यादा एक का हुआ। So क्वेश्चन पूछा है, however one of them shows much higher relative growth rate. Which one and why? Why? The ratio of the initial growth and the final जितना हुआ है that is larger than that of B. So relative growth rate of A is 100%, whereas B का only is a 10%. हाँ मुझे 110 आया है। 210 not 10 परसेंटेज में निकालो ना। परसेंटेज में निकाले 200 आया। हाँ growth given per unit time is 10 upon initial 5. So 5 by 2 that is 100 to 100. I got 200 and something. How did you get 100% and 10%? परसेंट में निकालना है ना। परसेंट में तो निकाला है 100 minus 100 minus 100 is 90%. Is this like the chemistry that us होता है when you find the quantity of correct answer आना? अब इसमें क्या आंसर इसका होना? अभी she gave you हमारा ये ग्रोथ रेट है। हम कैलकुलेशन करेंगे। The growth of the given system per unit time is expressed on a common basis per unit initial parameter. So growth rate is equal to growth of the given system per unit time निकाला क्या कितना टाइम लिया उसने, तो वो यूनिट टाइम निकाल के उन्होंने 100% किया होगा। ओके यूनिट टाइम कंसिडर करो ना, 1 वीक है इसका और इसका कितने इसमें गया वो नहीं दिया उन्होंने। हाँ तो वो टाइम मिलना चाहिए यहाँ पे, देन यू कैन फाइंड 100। तो ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम निकालेंगे, पर टाइम कितना उसको टाइम लगा वो भी इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट टाइम। तो अगर ये 2 दिन में इतना हो गया और इसको 4 दिन लगे, समझा क्या? हाँ ठीक है ना, लेकिन टाइम भी कंसिडर करना पड़ेगा ना, दोनों को सेम टाइम नहीं लगा बिकॉज ये ए प्लांट है ये बी प्लांट है, तो दोनों सेम टाइम में इतने ग्रोथ तक कितना ग्रोथ करेंगे वो पता नहीं ना, उसकी जेनेटिक्स पे डिपेंड है। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली कंसिडर कर लिया 100%। यहाँ पे उन्होंने 1 वीक दिया मतलब 5-6 डेज है ना, लेकिन इसका नहीं दिया, तो वो टाइम कंसिडर करेंगे तो देन यू कैन फाइंड आउट बिकॉज इट इज पर यूनिट टाइम रिलेटिव ग्रोथ रेट। ओके चलो कंडीशन फॉर ग्रोथ, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। ठीक है तो ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, न्यूट्रिएंट अभी हमने किए मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ये होने दो, चलो क्यों इतना बोर हो रहा है? ये डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन करते फिर उसको। चलो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। हाँ वो आगे है ना, इसमें है। प्राइमरी मेरिस्टेम सेल डिवीजन करेगा, न्यू सेल्स बनेंगे, न्यू सेल्स विल स्टार्ट फॉर्मिंग प्राइमरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। ये हमने किया है ऑलरेडी। तो वो होगा यस, वो डिफरेंशिएट करेगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कौन से? प्राइमरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू अगेन गेन द कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट। परमानेंट है लेकिन कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल बन गए तो वो हो गया डी डिफरेंशिएशन and that form the secondary meristematic tissue. So secondary tissues are core cambium and vascular cambium जो गर्द बढ़ाएगा,
Okay. Secondary meristematic tissue again got the activity, meristematic activity, and form the secondary permanent tissue, that is a redifferentiation. Redifferentiating part secondary cortex, secondary xylem and secondary phloem. इसका मैंने पूरा बहुत अच्छे से एनाटॉमी में पढ़ाया है. वही रीजन, सामने बच्चे नहीं थे तो फेसेस एकदम हैप्पी है या सैड है वो मुझे समझ में नहीं आता था, तो आई हैव गिवन माय 100%. चलो ड्रॉ करो. ये नहीं दिया है एनसीईआरटी में, दिया है. हाँ तो ये ड्रॉ करो. समझा ये समझा है क्या? हाँ नोट्स में हो सकता है लेकिन नोटबुक में ड्रॉ करो. चलो बहुत नींद आ रही तुम लोगों को, तुम्हारे साथ मुझे भी. इतना करो, ये 2 क्वेश्चन के आंसर करो, मैं छोड़ देती हूँ. फिर कल वापिस से मैं करूंगी यही. College exam was there. Now when I came back home, I had to eat and एग्जाम है they are saying, मुझे पता नहीं. आज 5 है क्या तारीख? आज क्या तारीख है? या 6 है ना? कुछ नहीं कर सकते. मैं अभी भेजूंगी, मैं भेजने नहीं वाली हूँ रिकॉर्डिंग.